Hello students, once again welcome to online classes from Devasa International Public School. I'm your English teacher. Today I'm here to teach you lesson number 6, Expert Detectives. So please pay attention over here. Some new words are there, so please repeat it with me. First one, monster, rubbish, interrupted, disappointed, spectacles, generous, attitude, inquiries, obviously, and stubbornly. Students, some new words are and word meanings are also there. First one is stashed away. What is the meaning here? Stashed away means hidden away. Following means coming after. Gunt means stickly. Peek means look quickly and secretively. टिप्स वेल यानी कि गिव्स अ जेनरस टिप, किसी को टिप देना कोई अच्छी. टिप्स वेल यानी कि गिव्स अ जेनरस टिप. शॉर्ट आउट मीन्स अरेंज सिस्टमैटिकली. अरेंज सिस्टमैटिकली. क्रूक मीन्स क्रिमिनल. नंबर 8, बाय अपॉइंटमेंट टू. बाय अपॉइंटमेंट टू तो ऑफिशियली चोजन. ऑफिशियली chosen. Number 9, allies, an alternate name. Allies means an alternate name. Accomplice, accomplishment means a helper in crime. If somebody helps you in your crime, then that person is called accomplice in your crime. So a helper in crime. Students, now I will explain you the whole story. Lesson number 6, Expert Detectives. So before we read this lesson, I want to explain one paragraph given here before you read. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. Nishad, a boy of 7, 7-year-old boy, and he's also called 7 because its name means the 7th note on the musical scale. Musical scale पे जो 7th note है, हम जो बोलते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी शा, तो वैसे यहाँ पे जो 7th note है म्यूजिकल स्केल पे उसको वो इसके नाम से सजेस्ट होता है. दैट इज़ वाई उसे 7 भी बुलाते हैं लोग. एंड हिज 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. So that boy Nishad and his sister, 10-year-old sister Maya, both the children are very curious for anything, to know something. यानी कि वो बहुत curious रहते हैं, just like the detectives. That is why the name here, chapter name is that Expert Detectives. So these two brother and sister, this younger brother and sister want to know something about Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. तो एक दिन क्या हुआ, then one day the children's marble, जो कंचे जो खेलते हैं बच्चे मार्बल रोल्स, वो मिस्टर नाथ के रूम में चले गए एंड निशाद को चांस मिल गया उनको देखने का. इज ही अ क्रूक ऑन द रन? वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड? एंड वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? तो दिस ऑल आर क्वेश्चंस दैट कमिंग इनटू द माइंड ऑफ निशाद. यानी कि ये सब जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर निशाद और उसकी बहन को चाहिए कि क्या वो कोई क्रिमिनल है, क्या उनका फेस ऐसा बैडली स्कार्ड क्यों है, उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है. तो दिस टू चिल्ड्रन वांट टू नो दिस आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस. सो हियर दे वांट टू detect all these things. Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. निशाद की जो मदर है, she is a doctor and she knows Mr. Nath very well as a patient who is very polite. जो बहुत अच्छे इंसान है उनको एज अ पेशेंट उसकी मदर जानती है बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस होल स्टोरी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू के what is the main story in this chapter, Expert Detectives. तो
As we walk back towards the clinic, Seven said, he doesn't look anything like a monster. जैसे ही वो लोग यहाँ पे जो ऑथर है, जो राइटर है, वो पूरा लेसन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, जैसे ही वो क्लिनिक से बैक आ रहे थे, उन सेवन ने कहा कि ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, वो कोई राक्षस की तरह, यानी मॉन्स्टर यानी यहाँ पे कोई बैड इंसान की बात हो रही है, राक्षस जैसे इंसान की बात हो रही है, तो वो कोई ऐसे इंसान नहीं लग रहे, वो कोई राक्षस नहीं लग रहे माया. बट डिड यू सी हाउ थीन ही इज़, बट तुम जानती हो वो कैसे पतले हैं. थीन यहाँ पे उनकी बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है कि हाउ थीन ही इज़, मे बी इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड इट टू इट. तो यहाँ पे वो जो निषाद है वो कह रहे हैं, सेवन सेड मे बी इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है और वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. दैट इज़ वाई वी कैन से ही इज़ पुअर. ही कांट बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम he has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Here Maya said he can't be poor. वो poor नहीं हो सकते as he is a criminal, he is a crook on the run, because वो criminal है. वो अगर कोई criminal है तो वो गरीब नहीं हो सकते हैं. I told him, मैंने कहा था उनसे, he is poor, he is probably got millions of rupees stashed away. So students यहाँ पे stashed away, what is the meaning of stashed away? स्टैश्ड अवे मीन्स हिडन अवे, छुपा के रखा है. उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज समवेयर इन दैट रूम, मिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने अपने कमरे में छुपा के रखे हैं. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है माया. सो ही डजेंट लुक लाइक वन, वो वैसे लग तो नहीं रही है. निशाद लुक डाउटफुल, तो निशाद इस चीज़ में डाउटफुल लग रहा है कि वो एक क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं. Of course he is one, seven, I said. So यहाँ पे माया said that कि yes of course he is one, यानी कि वो क्रिमिनल है. And he certainly isn't starving, और वो मैं श्योर कह सकती हूँ कि वो भूखे भी नहीं रह रहे. he isn't starving. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट, मिस्टर मेहता ने हमें कहा था, रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से रमेश उनके लिए फूड लेके आता है. सो वो भूखे भी नहीं मर रहे. सो यहाँ पे मिस्टर नाथ की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी one girl named Maya and his brother Seven, we can say Nishad or Seven, and in that picture you can see Mr. Nath who is talking about in this whole story. यहाँ पे इनकी बात हो रही है, उनके फेस कैसा लग रहा है, उनके फेस पे जो स्कार्ड है उसकी वजह से ये दो भाई बहन सब कुछ जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food. But Maya, Nishad said, but Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. मिस्टर मेहता ने हमें कहा था कि doesn't work anywhere, वो कहीं पे काम नहीं कर रहे. so how can he possibly have money to pay for food, तो फिर उनके लिए फूड के पैसे देने के लिए उनके पास मनी कहाँ से होंगी. निशाद said, exactly, I exclaimed, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. Exactly, मैं वही बताना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें वही समझाया कि he must have lots of money, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी मनी है, बट सम हिडन समवेयर, यानी कि कुछ कहीं पे छुपा के रखी है. मे बी इन दैट ट्रक इन हिज रूम, यानी कि उनके रूम में जो ट्रंक रखा है, जो पेटी रखी है, उसके अंदर शायद उन्होंने छुपा के रखे होंगे. इट्स प्रॉबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, तो यहाँ पे माया सेड दैट कि इट्स प्रॉबेबली, वो दैट ट्रंक इज़ प्रॉबेबली फुल ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड ज्वेल्स, वहाँ पे उसमें बहुत सारी गोल्ड, बहुत सारे ज्वेलरी एंड सिल्वर हो सकता है. व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड. इंटरप्ट मतलब किसी की बात में दखल देना, यानी कि इंटरप्ट करना. वो जब बोल रही थी तब निशाद इंटरप्टेड इन हर टॉकिंग. व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो तुम. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे, Seven, डिड यू सी हिज स्कार्स.
आई नो आई एम राइट स्टूपिड। तो माया उसके भाई को कहती है स्टूपिड, आई नो आई एम राइट, मैं मुझे पता है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि 7 डिड यू सी हिज स्कार्व्स, क्या तुमने उनकी फेस पे जो ये स्कार्व्स है उसको स्कार्स है उनको देखा है? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। मैं नहीं देख पाया था, बहुत डार्क था, बट मैं ये बैट लगाता हूँ कि वो ज़रूर शूट आउट, जब पुलिस के साथ शूट आउट में कुछ हुआ होगा तभी उनके मुंह पर ये सारे जो स्कार्स है वो लगे हुए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फैमिली। निशाद क्लियर दैट, निशाद अपनी सिस्टर से कहता है कि मम्मी टोल्ड अस, उनकी मदर ने उनसे कहा था, क्लियरली कहा था कि दे वेर बर्न स्कार्स, उनके जो मुंह पे है वो जलने के निशान है। किसके निशान है? जलने के। So perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. यानी कि आई सजेस्टेड मतलब यहाँ पे जो ऑथर है, राइटर है, माया है, वो कह रही है कि शायद पुलिस ने उनको बाहर निकालने के लिए, फोर्स करने के लिए उनके घर को जलाया होगा शायद। एंड 7 लुक्ड अनश्योर, 7 को ये थोड़ा अजीब लग रहा है, वो अनश्योर है इस बात से। On the Monday following Mama's birthday, 7 went along with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. On the Monday following Mama's birthday, यानी कि मंडे को उनकी मदर का बर्थडे आता है। 7 वेंट अलॉन विथ हर, वो उनके साथ अकेले जाता है। टू द क्लिनिक, क्लिनिक जाता है जो गिरगांव में है उनका। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि अपना जो इवनिंग है वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, माया अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी। दैट इज़ वाई 7 अकेले उसकी मदर के साथ क्लिनिक जाता है। व्हेन दे रिटर्न, जब वो रिटर्न आते हैं, निशान टोल्ड मी he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. When they return, जब वो रिटर्न आते हैं, निशाद told me, निशाद मुझे कहते हैं, he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों वहाँ नहीं थी, उनको ऐसा फील होता है। माया कह रही है कि वो लोग निशाद के रिटर्निंग में मिस्टर नाथ को देखने गए थे, फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों वहाँ नहीं गई थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. यहाँ पे घंट का मतलब होता है सिकली, बीमार जैसे। तो उनका जो बीमारी वाला लुक था, अपीयरेंस था, वो श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, यानी कि उनको भूखमरी की वजह से उनकी ये हालत हुई है, वो भूखे रह रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, open the door quickly, Mr. Nath. He told me, यानी कि निशाद टोल्ड हर दैट, निशाद ने उसकी बहन से कहा दैट आई हैड नॉक लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर। उस शाम को निशाद ने उनके डोर को बहुत ज़ोर से खटखटाते हुए कहा कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ अपना दरवाज़ा जल्दी से खोल दीजिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। फिर जो इंसान ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या फिर से तुम्हारे मार्बल खो गए हैं। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, यानी कि वो मेरे ब्रदर को जानते थे, रिकग्नाइज यानी पहचान चुके थे। नो सेड निशाद, निशाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, यानी कि वो क्या कर रहा है, निशाद अपने उनके हाथ को, मिस्टर नाथ के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उनको एक बार ऑफ चॉकलेट देता है, उसके हाथ में रखता है। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक 7, आई आस्क।
Here the author asked her brother that did you get a chance to pick into the trunk seven. Did you get a chance to pick means here to pick means to stare यानी कि देखना झांक के क्या तुम्हें उस ट्रंक में झांकने को देखने को मिला था निषाद. निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. तब निषाद थोड़ा निराश लग रहा है, दुखी लग रहा है. निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in. यानी कि मतलब कुछ पूछा भी नहीं उस टाइम पे और वो थोड़ा डिसपॉइंट लग रहा था. Then he smiled. उसने स्माइल किया. But I did find out something, Maya. But I want to find out. यानी कि यहाँ पे जो 7 है वो कुछ ढूंढना चाहते, वो कुछ पता लगाना चाहते. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. जहाँ पे रेस्टोरेंट में रमेश वर्क करते हैं वहाँ पे वो जाते हैं और उनसे बात करते हैं. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you question him properly. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव मीन्स यहाँ पे जो माया है, जो ऑथर है, राइटर है, ही इज सेइंग हर ब्रदर दैट गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव यानी कि वो अपने भाई को क्या कह रहे हैं, मिस्टर डिटेक्टिव. पैटिंग हिम ऑन द बैक उनकी पीठ थपथपाते हुए. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली मुझे लगता है कि तुमने उनसे अच्छे क्वेश्चन करे होंगे यानी कि उनसे प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे. 7 लुक प्लीज्ड. 7 थोड़ा खुश लग रहा था. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. 7 looked pleased. वो खुश लग रहा था. रमेश ने उनसे कहा कि he takes 2 meals. वो 2 बार खाना ले जाते थे for Mr. Nath के लिए for every morning and evening. सुबह और शाम को 2 टाइम वो उनके लिए खाना लेकर जाते थे. and 2 cups of tea और 2 कप चाय की. 1 in the morning and 1 in the afternoon. एक नून में और एक आफ्टरनून एक मॉर्निंग में और एक नून में 2 कप चाय लेके जाते थे. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही इट्स. इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाटीज, सम दाल एंड वेजिटेबल. रमेश ने कहा कि वो अपने खाने के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं थे बहुत कि वो क्या खाता है, बट ऑलवेज सेम फूड था. 2 चपाटीज थे और थोड़ी दाल और 1 वेजिटेबल यानी कि 1 सब्जी. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. टिप्स वेल मीन्स गिव्स जनरस टिप, मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस. आपको पता ही होगा टिप्स देना. जब आप होटल में जाते हो तो आप बिल के साथ एक्स्ट्रा मनी रखते हो, दैट इज कॉल्ड टिप्स. सो हियर मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. वो कैश में बिल पे करते थे और टिप्स भी अच्छी देते थे. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. हियर निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. रमेश ने उनसे कुछ अलग बताया माया. 7 एडेड. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. रमेश ने उनसे क्या कहा ऐसा कि वो हर संडे को, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunch. वो हर संडे को 2 लंच लेके जाया करता था मिस्टर नाथ के रूम में. और वो हर बार एक ही इंसान होता था. द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम. हर टाइम उसके साथ मिस्टर नाथ के साथ एक ही इंसान हुआ करता था. ही इज़ टॉल, फेयर, वो ऊंचे थे, फेयर थे, एंड वियर स्पेक्टिकल्स और वो चश्मे पहनते थे. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. रमेश कहा करता था, जो विजिटर आता था उनके घर वो बहुत बातें किया करता था, और मिस्टर नाथ जो है वो थोड़ा बहुत, हार्डली स्पीक्स मतलब थोड़ा बहुत कम बोलते थे. वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम. नाउ that we have made some progress with our inquiries, we shall have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. Sort out means arrange systematically. तो निशाद माया उसकी बहन जो है वो उसको
वेल्डन कहती है, वेल्डन निषाद, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ अवर इंक्वायरीज, हम जो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें हमने थोड़ी प्रोग्रेस की है। वी शैल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, अभी हमारे पास सारी फैक्ट्स है जो हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह उसको शॉर्ट आउट करना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। हाउ हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 साइन, 7 ने साइन दी कि अभी तुम कैसे आगे बढ़ोगे, हाउ यू गो ऑन। नाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। अभी मतलब जो निषाद है उसकी बहन से कहता है कि क्या तुम अभी भी पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक, अभी भी तुम इमेजिन कर सकती हो कि वो कोई क्रिमिनल है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बहुत साधारण इंसान लग रहे हैं, वो बहुत सामान्य लग रहे हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड, यानी कि यहाँ पे माया ने रिपोर्ट किया, यानी कि माया ने उसके ब्रदर को बताया क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, यानी कि वो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो ऑलवेज ऐसे ऑर्डिनरी दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे, क्या तुमने इन द पेपर ऑफ द डे प्रीवियस डे, क्या तुमने लास्ट डे के पेपर में देखा था कि एक हाउस ब्रेकर, हैदराबादी हाउस ब्रेकर को तुमने देखा था। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुल, यानी कि कोई रास्ते के इंसान की तरह सीधा साधा इंसान लग रहा था वो, और निषाद फिर से डाउटफुल लगा, निषाद लुक डाउटफुल। The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. दूसरे दिन क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई, डार्क क्लाउड्स आ गए, बहुत सारी बिजलियाँ और तूफान आने लगा और बहुत हैवी रेनफॉल हुआ। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विथ हैवी डाउनपोर, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, यानी कि बहुत लॉन्ग समर हॉलीडेज के बाद स्कूल रीओपन होने ही वाली थी, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। वहाँ पे जो पानी भर गया था उसकी वजह से जो ट्रैफिक हो गया और सारा जो रोड जाम थे उसकी वजह से क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया, छुट्टी हो गई। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सैट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैंने क्या सोचा, मैं क्या करूँगी, मैं वो पूरा दिन यूज़फुली स्पेंड करूँगी। वो दिन मैं जो छुट्टी हुई थी उसकी वजह से टाइम बहुत था, तो वो मैं पूरा दिन यूज़फुली स्पेंड करूँगी। आई सेट एट माई डेस्क, मैं अपने बेडरूम में मेरे आगे एक शीट ऑफ पेपर लेके बैठ गई और मैं अपने बेडरूम में जाके मेरे डेस्क के आगे बैठ गई। सो नाउ देयर इज अ पार्ट, सेकेंड पार्ट इज देयर। सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू द सेकेंड पार्ट in our next video. Have a nice day and thank you.